Every hoof tells a story about the diet, trim, living environment, balance, and movement. It's seriously frustrating when your horse's lameness isn't improving and nobody's giving you any clear answers about why. But when you learn to assess the hooves yourself, you get clarity. Just imagine assessing the hooves and knowing instantly what the issue is and what to do about it. That's what the Hoof Care Essentials course was created for. It's there to empower every horse owner so that WTF can turn into, yeah, I've got this. Why not join today? You've got nothing to lose and everything to gain. All right, so superficial muscles of the hind end. We have the TFL, which is also the quads. We have the superficial glute, and then we also have the bicep femoris and the semitendinosus. The semitendinosus is part of the hamstrings, and I know you guys have been hearing me talk a lot about the hamstrings, so this is a good time to actually have an outline of where that muscle is. All right, so superficial muscles of the hind end. We have the TFL, which is also the quads. We have the superficial glute, and then we also have the bicep femoris and the semitendinosus. The semitendinosus is part of the hamstrings, and I know you guys have been hearing me talk a lot about the hamstrings, so this is a good time to actually have an outline of where that muscle is. Learn to read the hoof and say goodbye to hoof confusion. The top of the hoof wall gives us valuable information about what's happening inside the foot. That first 10 millimeters of new growth, right below the hairline, grows at the same angle as the pedal bone. So when we highlight that section here, we can start to visualize the angle of the pedal bone inside the hoof. Now watch what happens when we extend that line toward the ground. It helps show where the breakover point should actually be and can help us spot things like long toes or hoof capsule distortion. But I want to be clear, this is not a trim line. It's simply a visual guide to help you understand what the hoof is telling you. If you want to learn how to trim hooves like this, join our online courses, links in the bio.
This cat has been fed exclusively chicken and fish. It now presents with significant neurological deficits, including a drop jaw appearance. The dropped jaw is caused by paralysis of the jaw muscles, alongside tongue paralysis. Weakness in all four limbs was also seen, together with loss of coordination and spatial orientation. A series of diagnostic tests pointed toward nutritional encephalopathy, specifically deficiencies in taurine, thiamine, and cobalamin. This highlights the risks of unbalanced home-prepared diets in cats. Fortunately, with hospitalization and targeted dietary supplementation, the cat made a full recovery. अच्छा, अब ये एंड वाली है एंड्रोमेट्रियम, ये नज़र आएंगे जी। अच्छा, ये एंड्रोमेट्रियम है, ये देखो, ये अच्छा, ये कार्टिलेटन है, ये क्रिंकल है, ये दोनों जो मिले हुए हैं ये प्लेसेंटोम कहलाते हैं। प्लेसेंटा इस जेर को कहते हैं, प्लेसेंटा इस जेर को कहते हैं। अच्छा, इनको जुदा करने के लिए ये तरीका है, ये अंदर जो टुकड़ा बाहर है उसको पकड़ के अंदर हाथ चलाते जाओ, इसको पूरे को घुमाते जाओ, ये चारों तरफ से हाथ घुमाना पड़ता है, चारों तरफ से, कि उस वक्त अंदर से फीटस निकल चुका होता है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात इसके अंदर, ये आपको वाजे करियर, ये प्लेसेंटा की भी दीवारें मिल जाएंगी। ये सबसे पहली ये कौन सी है? अमनियोन, ये वाली, ये वाला, ये अमनियोन है, देख रहे हो जी। इसके अंदर भी ये अमनियोन है, ये वाली। मैं पूरी अमनियोन एक मरतबा उतार देता हूँ। ये वाली अमनियोन के बाद ये दूसरी है क्रेयॉन, ये वाली नजर आ रही है जी। ये वाली, ये अब ऐसा करो, बाल्टी पकड़ो, इसका फ्लूइड में निकाल लो ताकि फिर आपको बाकी चीज़ें, यही बाल्टी पकड़ो, लाइट लगाओ ना, लाइट लगाओ, इधर पकड़ो। मिलके सारे निकालने बच्चे इसे फट जाएगी। सर एक काटना और माँ की तरफ से कौन से होते हैं सर? माँ बच्चे की तरफ से कार्टिलेटन होते हैं, माँ की तरफ से क्रिंकल होते हैं। दोनों जब मिलते हैं प्लेसेंटोम करवाते हैं, प्लेसेंटा जेर को कहते हैं। अच्छा, ये देखो, इधर देखो, उसको फिलहाल छोड़ दो, फिर बनाते हैं वो इधर ही। इसको कोई काटेगा? जिसने काटनी हो तो काट सकता है, बाद में ये आ जाओ, जिसने काटनी हो।
पेरीमेट्रियम एंडोमेट्रियम बायोमेट्रियम बटेगा आप ध्यान से एंडोमेट्रियम बाटी पकड़ लो। नहीं करते यार सब दिखा दे रहे आराम काटो ना सब कटेगा पेरीमेट्रियम बायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम काट दिए थे उधर बस का काम दे कर लेंगे पार्ट में निकाल लेना ये पार्ट लेकिन वो छुड़ा रहा है इसमें हाथ लगाते जाए थोड़े उधर निकालो उधर 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 बाल्टी के अंदर उल्टा कर। बीच में चला जाएगा सारे का सारा बीच में कर दो पूरा जाए। इस तरह सबके कपड़े में जाने दो सारा वेस्ट करो। ये नाड़ों के अंदर 3 वेन होती है जिसके जरिए से पूरे बच्चे को खुराक हो गया। चेक करो अभी बाल्टी आगे दे आप। ये जो ऊपर है वो कलर बकरी है अच्छा अब ये देखिए ये बकरी का है। ये क्या है? बकरी गोट का है भी फीमेल बकरी है। बकरी के अंदर फिर बकरी है। अच्छा अच्छी नस्ल की अच्छी ब्रीड है। इतनी माड़ी भी नहीं है इतनी वो भी नहीं सही। अब ये गाय का है। गाय का है ये भी गाय का है। ये फिर बकरी का। अच्छा इधर आपको गाय की और भैंस की पहचान बताता है। बाद में आप लोग आपस में बहस करते रहो ये सारे ऐसे क्यों छोड़ गए थे हमें आपस में लड़ा दें। दुनिया के अंदर गाय और भैंस की सबसे बड़ी एक पहचान है। गाय की झालर होगी और कुम्हाड़ होगी। भैंस की झालर नहीं होगी और कुम्हाड़ नहीं। इन दोनों की कुम्हाड़ है। इन दोनों की कुम्हाड़ है। इसको ये और वैसे मेरा अपना एक आइडिया है इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। ये दोनों थरी नस्ल है क्यों ये चीज़ उसी में ज़्यादा या सहीवाल में ज़्यादा पाई जाती है या इनमें ज़्यादा पाई जाती है। उस वजह से मैं इसे कह रहा हूँ। बाकी हैं गाय की। अब ये देखो अब बकरी के अंदर ये 1 माह का बच्चा है। बकरी के अंदर 25 दिन 30 दिन 20 दिन 20 से 25 से 30 दिन का दरमियान का बच्चा। अब गाय भैंस के अंदर ये वाला बच्चा ये जो है ये 3 माह का है। अब बकरी के अंदर ये बच्चा 2.5 माह का है। कितना? 2.5 माह का है। अब ये वाला गाय भैंस के अंदर 5 माह का है। अब इन बच्चों के अंदर ये पकड़ा जाएगा ये पकड़ा जाएगा ये नहीं पकड़ा जाएगा ये भी नहीं पकड़ा जाएगा। इनके अंदर ब्लड में टेस्ट करना होता है जिसको थक्की वाला टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और किसी का इसके मुताल्लिक कोई सवाल है वो करो। तो बाकी अब इनकी पेमेश है इसी को ले रहा हूँ। ये तकरीबन 14 सेंटीमीटर से लेके 20 तक तकरीबन 19-20 तक तकरीबन है। अच्छा
इस फील्ड का पूरा लब्बे लुबाब निचोड़ रिजल्ट तकरीबन पे है। कभी ज़िंदगी के अंदर किसी को एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं देना, ये कि 5 माह में 6 महीने आपने खुद सेमिनेशन की हुई है, आपके पास डेट लिखी हुई है, तब भी आपने उसे वो डेट नहीं बताई। 10-15 दिन ऊपर नीचे रख के डेट बताई तकरीबन। ठीक है जी। अब ये तकरीबन 14 से 20 तकरीबन कितने सेंटीमीटर का हो गया? 6। अब इसकी बात करें तो यूँ करें, ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर के राउंड बोट है। अब इसकी बात करें तो ये तकरीबन 28, 27, 28, 29 सेंटीमीटर। इसकी बात करें 35 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, या 35 सेंटीमीटर। बेटा ये जो हारन का साइज कार्टिलीटर ये एग्जैक्ट मंथ है। बच्चे का साइज नस्ल की बेस के ऊपर छोटा बड़ा होता रहेगा। कभी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये सारा कुछ। इनकी मुख्तसर सी पे मैच करो, इसको और इसको बीच में डाल देना, इन दोनों को बीच में डाल के नीचे नाले में फेंक देना। पे मैच जिसने करनी है चेक करनी।